Are influencers doing something wrong or is it on us? Hi. So in today's video we are going to be talking about trends and consumerism. Let's talk about influencers, trends, consumer. Let's break it down from influencers to trend. I'm a kind of a person जो trends को इतना usually follow नहीं करते. Be it makeup trend, be it fashion trend, be it dance trend. Of course, in order to grow on Instagram, you need to use the trending audios, but that's it. That is the most trending thing I do. There are times when people have targeted influencers where people are saying that influencers are bad, influencers की वजह से there is a lot of consumerism in the world. We are consuming, we are buying things mindlessly. वो भी खरीद रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है because influencers are promoting those things. Influencers की इतनी luxurious lifestyle देख के we tend to get jealous and हम लोग सोचते हैं कि हमारी life ऐसी क्यों नहीं है. But what I think is कि influencers are not bad. Influencers are just doing their work. I mean, everybody is out there just to earn money. Think of it as somebody who's owning a shop, owning a जनरल स्टोर. वो अपनी दुकान में 50 प्रोडक्ट्स रखते हैं, बट दे डू नॉट यूज ऑल दोज 50 प्रोडक्ट्स इन देयर डेली लाइफ. सो सिमिलरली ऑल्सो गोज विद द इन्फ्लुएंसर्स. मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट हियर टू सेव इन्फ्लुएंसर्स फ्रॉम ऑल द डिफेम, बट मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स को जितना दोष देते हैं उतना ही दोष वी एज कस्टमर्स हैव टू टेक, बिकॉज वो उनका काम है. लाइक दे हैव टू प्रमोट सर्टेन प्रोडक्ट्स, दे हैव टू प्रमोट 20 थिंग्स इन देयर रील्स, इन देयर वीडियोज़, बट लेकिन वी एज कस्टमर्स हैव टू डिसाइड कि हमें वो चीज़ें खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है. लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द सॉफ्ट गर्ल एरा, लाइक आजकल ट्रेंडिंग है इंस्टाग्राम एंड पिंटरेस्ट पे द सॉफ्ट गर्ल एरा. I mean, of course, it is beautiful. Like, it is every girl's dream out there कि we wake up, in a very cutesy pajama set. We wake up, we make our own matchas, we are going for pilates, then we are going for pickleball, getting cutesy dressed up, and we are going to brunches with our girlfriends, then we are coming back and we are journaling and we are doing all those things. I get it, but what I think is कि ये सारी चीज़ें सिर्फ वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास पैसे हैं. It is on us एज कंज्यूमर्स ऑफ दैट कॉन्टेंट कि हमें वो चीज़ अपनी लाइफ में इनकॉपरेट करनी है कि नहीं करनी है. आई मीन, देयर आर सर्टन काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हु आर प्रमोटिंग दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स लाइक द सॉफ्ट गर्ल एरा and all these things, and there are other kind of influencers who are promoting hustle culture and who are promoting how to be your own boss, how to make your own money, how to wisely spend your own money, and also it is on us एज कंज्यूमर्स ऑफ द कॉन्टेंट दैट हमें किस तरीके का कॉन्टेंट कंज्यूम करना है, हमें उस कॉन्टेंट से कहाँ तक इन्फ्लुएंस होना है. लाइक फॉर आई पर्सनली सी अ पीस ऑफ कॉन्टेंट जिसमें देर इज़ अ सॉफ्ट गर्ल एरा वेयर वेरी ब्यूटिफुली, वेरी एस्थेटिकली reel has been shown into a soft girl era. What I see is the girl is living her own life. I mean, the girl has made her own life so beautifully. We take the example of this particular influencer and her life is very aesthetic, so I think it is good for them because उन्होंने अपनी लाइफ में उतना हासिल किया है that they are now able to achieve all those things and they are able to go to whatever the shit they want to do, they are able to do it because उन्होंने मेहनत की है. So मुझे ऐसा लगता है कि we as audience here have to understand कि अगर हम किसी चीज़ पे ब्लेम डालेंगे दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप मेक कॉन्टेंट लाइक दैट. इट इज़ ऑन अस कि हम उस कॉन्टेंट को कैसे परसीव कर रहे हैं, हम उस चीज़ को कैसे किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि वो ये चीज़ें प्रमोट करें. बिकॉज ऑफकोर्स एट दी एंड सबको पैसे कमाने हैं. इस धरती पे रहने के लिए एवरीबडी नीड्स मनी and some are doing IT jobs, some are doing some other kind of jobs, and these people are doing these kind of jobs जिससे एक ब्रांड डील से उनको आज हो सकता है वो एक्वालॉजिका का प्रमोशन करें, कल हो सकता है अगर उनको डॉट इन की ने पैसे दिए दे विल प्रमोट डॉट इन की. वो उनका काम है कि वो जितने प्रोडक्ट्स उनके पास हैं वो दिखाएं. बट इधर हमें अपना दिमाग यूज़ करना है कि डू वी नीड दोज काइंड ऑफ थिंग्स. हम एक सनस्क्रीन के सहारे ज़िंदा रह सकते हैं फॉर 1 or 2 months. इट इज़ ओके दैट वी यूज़ सेम सनस्क्रीन फॉर 2 months.
इन्फ्लुएंसर्स को वो चीज़ फ्री में मिल रही है, दे आर गेटिंग मनी टू प्रमोट इट एंड दे आर गेटिंग मनी आउट ऑफ इट. बट हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास इतने पैसे हैं एंड वी हैव टू इन्वेस्ट दैट मनी उस जगह पर जहाँ पर वी गेट रिटर्न्स, राइट. हमारे पास अंधा पैसा नहीं है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम जहाँ भी अपने पैसे लगा रहे हैं एक सनस्क्रीन खरीदने में, दैट इज़ गुड फॉर अस. सनस्क्रीन का जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो जाए, या जिस भी चीज़ को हम खरीद रहे हैं उसका पर्पज़ सॉल्व हो जाए. आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड द नीड टू ब्लाइंडली फॉलो द ट्रेंड्स, बिकॉज ट्रेंड्स तो आते जाते रहते हैं. आज कुछ चीज़ वायरल है, कल कुछ चीज़ वायरल होगी. आज पेप्टाइड, आई एम श्योर मेनी ऑफ अस डोंट इवन नो द मीनिंग ऑफ पेप्टाइड, बट वी आर ब्लाइंडली फॉलोइंग दैट रोड पेप्टाइड लिप बाम सिचुएशन. एवरी अदर गर्ल इज हैविंग दैट. भाई वो 4,000 का लिप बाम, ये चीज़ हमें खुद से पूछनी है दैट डू वी इवन नीड दैट 4,000 रुपये का लिप बाम. द वर्क इज टू हाइड्रेट द लिप्स, मे बी गिव सन प्रोटेक्शन. अगर वो चीज़ ऑल्टरनेटिव कोई दे सकता है देन वाई नॉट यूज दैट. जस्ट बिकॉज आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर के पास वो चीज़ है दैट डजेंट मीन कि आपको भी वो चीज़ चाहिए, बिकॉज उस इंसान को उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं बट यू आर नॉट गेटिंग शिट आउट ऑफ इट. सो इट इज़ बेटर कि आप उस चीज़ में इन्वेस्ट करो से आपकी पॉकेट में भी एक होल ना हो और आपका काम भी हो जाए. आई मीन वी एज ऑडियंस हैव लॉस्ट आवर ब्रेन्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपना दिमाग लगाना ही बंद कर दिया है. वी आर जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम, ऑन पिंटरेस्ट, ऑन टिकटॉक, एवर सोशल मीडिया दैट वी आर फॉलोइंग. हमें जो दिख रहा है हम वो कर रहे हैं. 2020s में एक अच्छा ट्रेंड आया था, दैट DIY ट्रेंड. दैट वाज प्रिटी गुड. लाइक हम लोग उन्हीं चीज़ों को रिसाइकिल कर रहे थे जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी एंड दैट वाज अ गुड थिंग. उससे कंज्यूमरिज्म भी नहीं था इतना. उससे हम लोग अंधों की तरह हर चीज़ कंज्यूम नहीं कर रहे थे. हम जो हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें हैं हम उसको ही मे बी बेस्ट यूज़ ऑफ इट. सो वो ट्रेंड कहाँ चला. आई रियली लाइक दैट ट्रेंड बिकॉज उससे हमें चीज़ों की वैल्यू पता चल रही थी. बिकॉज नाउ एवरी थिंग हैज़ लॉस्ट इट्स वैल्यू. आज एक बॉटल आ गई, कल दूसरी बॉटल ट्रेंडिंग हो जाएगी तो पहली बॉटल इज़ वेस्ट. फेंक थोड़ी दोगे आप उस चीज़ को. Celebrities can do it, influencers can do it because they have that much kind of money, but we as maybe middle class or whatever class kind of people, we do not have that much money कि हम उस चीज़ को waste कर सकें. And it is not even about the money, it is about wastage of things. It's high time that we understand what is a want and what is a need. I mean, spending money on something that we need is a necessity, and spending money on something that we want is a desire. Just because आप किसी चीज़ को देखकर इतना इन्फ्लुएंस हो गए हो कि आप वो चीज़ खरीद रहे हो, दैट इज़ आई थिंक अ बिट रॉन्ग इन माई ओपिनियन. एंड पर्सनली डू नॉट रेजोनेट विद द ट्रेंड्स बिकॉज फाउंडेशन ट्रेंडिंग है, कल दूसरा फाउंडेशन ट्रेंडिंग हो जाएगा. आज अगर टिर ने अपना PR इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है दैट दे आर सेंडिंग PR पैकेजेस टू एवरी इन्फ्लुएंसर आउट देयर एंड एवरी इन्फ्लुएंसर इज यूजिंग इट एंड वो एक फाउंडेशन 4,000 रुपये का है अगर, तो वी एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स वी कैन नॉट अफोर्ड दैट. एंड उसके ऑल्टरनेटिव्स ऑलरेडी मार्केट में हैं. अगर वो थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज हो जाएगा देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ यूजिंग दैट फाउंडेशन. आई मीन अगर उसके बेटर 1/4 प्राइस में अगर उसके ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है मार्केट में देन वाई आर वी नॉट यूजिंग इट. वाई आर वी जस्ट सीइंग द पैकेजिंग कि वो छोटू सा है, क्यूट सा है, पफ एप्लीकेटर, तो हम उससे इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं एंड वी आर जस्ट रनिंग टू टीरा एंड बाइंग ऑल दैट स्टफ. आई थिंक एंड आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि हो सकता है आपको वो चीज़ पसंद हो सकता है वो आपको चाहिए हो एंड इट मे बी ट्रू. माई कंसर्न इज कि बस अंधे नहीं हो जाना है कि एक चीज़ आई है तो उसके पीछे अंधे होके भाग रहे हैं एंड एवरीबडी इज़ डूइंग द सेम थिंग. मेरा सिर्फ एक कंसर्न यही है कि अगर कोई चीज़ है देन यू नीड टू अंडरस्टैंड. अगर आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है या अगर उस चीज़ का ऑल्टरनेटिव आपको कम प्राइस में मिल सकता है या अगर आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, इफ़ यू रियली रियली वांट द थिंग देन मेक श्योर कि आप उसके ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढो. ये कि 6,000 रुपये का एक फाउंडेशन या एक कंसीलर दिखा एंड यू जस्ट रैन एंड बॉट इट. यू नीड टू स्मार्टली इन्वेस्ट योर मनी इन थिंग्स which may bring
बेनिफिट्स टू यू इन द फ्यूचर. लाइक आप अपने पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि आपको फ्यूचर में उसको सोच के वो ना हो रिग्रेट कि यार मैंने अगर इस पे इतना पैसा नहीं खर्च किया होता तो आज शायद मेरे पास दूसरी चीज़ के लिए पैसे होते. आई मीन देयर आर सर्टेन ट्रेंड्स जो अच्छे भी होते हैं, बट उसको एनालाइज करने के लिए कि वो ट्रेंड अच्छा है या बुरा, वी नीड टू स्टार्ट यूजिंग आवर ब्रेन एंड वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग मैं जो कर रही हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है भी कि नहीं, ये चीज़ लॉन्ग रन में कैसी. सिमिलरली इफ़ यू थिंक अबाउट द आईफोन ट्रेंड, अभी रिसेंटली मार्केट में आईफोन आई थिंक 16 आया है एंड यू नो एवरीबडी वॉज जस्ट कि हमें आईफोन 16 खरीदना है, हमें आईफोन 16 खरीदना है. इवन आई हैव सीन अ कपल ऑफ पीपल जिन्होंने नया फ़ोन लिया था बट स्टिल दे वॉन्ट टू अपग्रेड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ आईफोन. आई मीन आई फाइंड इट वेरी हिलेरियस दैट आपने अभी कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे उस चीज़ में एंड नाउ जस्ट बिकॉज there is an upgraded version of anything in the market, you just have to run behind it and buy it, make it make sense कि आपने अभी वो चीज़ खरीदी थी. I mean okay if your phone has turned bad then you can go, but आपने अभी वो चीज़ खरीदी थी and just to follow the trend just because everybody has it you also want it, it doesn't make any sense. Like the collagen sheet masks, I mean do we even know that आर दीज नेसेसरी फॉर अस, हमारी ज़रूरत है भी वो कि नहीं, बट वी आर जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग बिकॉज एवरीबडी ऑन द इंटरनेट इज़ डूइंग इट. दैट डजेंट मीन कि हमें भी 5-6 हज़ार रुपये लगा के वो चीज़ खरीदनी है और वो चीज़ यूज़ करनी है. आपको उस चीज़ की ज़रूरत है ये आपको सोचना है, बिकॉज नोबडी इज़ गोइंग टू कम एंड पे फॉर योर थिंग. Similarly those aesthetic fill up videos, they look so aesthetic, like the sound, the ASMR, that is very good to listen to but and to look at it, but does that not promote overconsumption? Do we really need all those kind of things? Do we really need 10,000 same kind of containers in the house? I mean I know it looks aesthetic, but honestly in Indian households I don't think so it is necessary, because we as generation, if we will not understand this thing, then how are we going to teach our coming generation all these things? Because वो तो हमारे भरोसे है ना, और अगर हम ही ऐसी हरकतें करेंगे then I don't think so कि वो हमसे कुछ सीख सकते हैं. So it is better कि हम अभी जग जाएं, we start taking responsibility for our actions and let's make the world a better place. So yeah, let me know what you think about all the trends and consumerism, and we'll see you in the next video. Bye, take care.